हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब ठीक हो गए। बेटा पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस करा था मैटर अराउंड अस प्योर में डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, मिक्सचर, कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और वो पूरा चार्ट, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में था सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। केमिकल क्लासिफिकेशन में था प्योर एंड इम्प्योर। प्योर में था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स और इम्प्योर में था मिक्सचर। इनकी डेफिनेशंस और एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं, ठीक है। और जो एलिमेंट्स थे उसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो अब आपके इस चैप्टर में आगे मेटल्स के बारे में ही डिस्कशन है कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड व्हाट आर देयर यूजेस एंड एप्लीकेशंस। एंड इसके बाद है व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स and what are their applications. So let's see one by one point I am going to discuss. Metals are malleable. Malleable means transforming in form of thin sheets. बेटा जितने भी metals हैं all can be transform or convert into a thin sheets. जैसे gold है, gold sheets, iron sheet, silver sheet, just like a two-dimensional शीट के फॉर्म में आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो. इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, इट इज मेनली प्रॉपर्टी ऑफ metals. So malleability, it's a characteristic property known as malleability. What is malleability? Transforming or converting metals into thin sheets. Metals are ductile. Ductile, this term is coming out from the term ductility. Ductility is the tendency to draw into thin wires. Metals also have this property. That means metals can be converted into thin wires. You can see the examples of thin wires. Iron wires, ये जो कई बार स्ट्रेच करते हैं, ठीक है. कॉपर वायर्स आपने देखा होगा फैन में, उसकी एक कोयलिंग बनी होती है वायर की. एल्यूमिनियम वायर्स, ठीक है. देयर आर सो मेनी, ऑल आर मेड अप ऑफ मेटल्स. Metals are good conductor of heat and electricity. It's a very important point. Metals के थ्रू हम heat और electricity को conduct कर सकते हैं. This is because of presence of loosely bonded electrons. Loosely bonded electrons are also known as mobile electrons. And you know metals have sea, samudra, sea of mobile electrons. That means loosely bonded electrons, valence shell electrons, free electrons जो metals में होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं and all are free to move. So when we applied potential difference, suppose this is the metal wire, and when we connected this wire with the battery or with the electric source, positive and negative end, then the current start conducting from one end to another end through the mobile electrons, through the free electrons. Similarly, metals are very good conductor of heat. When you start heating this one as a metal, then the heat start moving from one end to another end. आप देख लेना, आप आयरन की कोई भी चीज़ ले लो, ठीक है. कुछ ना मिले तो आप किचन में जा कर के कोई चम्मच या रोटी पकड़ने का चिमटा, उसको बर्नर जला के उसके वन एंड को हीट करो. आफ्टर सम टाइम यू कैन फील द हीट ऑफ अनदर एंड ऑल्सो. सो मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट and electricity. Electricity is due to the flow of free electrons. Metals are lustrous, shining. Metals have the enormous property of lustrous, very important property. It is also due to the movement of free electrons. When free electrons are moved to and fro throughout the metal, and when sunlight or any light fall on the metal, then it is scattered in all directions, we feel shiny. Gold, jewelry, platinum, copper, most of metals have very characteristic property of shining. This is due to reflection and scattering of light due to the movement of free electrons. लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि वाई डायमंड की तो शाइनिंग बहुत ज़्यादा है, वाई इट इज़ अ नॉन मेटल मेड अप ऑफ कार्बन. It is due to another optical phenomena, total internal reflection, and due to the refractive index that you study in the further in physics classes, I think so in 10th or in +1. Okay.
So these are very lustrous, that have shining property. Metals are generally hard. Generally metals are hard because metallic atoms are tightly packed with each other in very close packing manner. Except alkali metals. Alkali metals like lithium, sodium, potassium, okay, mercury, gallium, cesium. These are some metals which are soft. Alkali metals mostly have their melting point nearly just above the room temperature, in which cesium and gallium, cesium देखो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट 371 है, पोटेशियम का 336 केल्विन है, गैलियम और सीजियम ये तो लगभग रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, 303 केल्विन इनका मेल्टिंग पॉइंट है। इनको छोड़ करके ये एक्सेप्शन कह सकते हो क्योंकि इनकी पैकिंग कुछ इस तरीका की होती है। अल्कली मेटल्स आर द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं जनरली, बट जो बीच में एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, ठीक है, मिडिल में कॉपर, आयरन, क्रोमियम, प्लेटिनम, मोलिब्डेनम, निकल, ठीक है, ऑल दीज आर वेरी हार्ड जनरली, इसलिए जनरली वर्ड यूज करा, मतलब ऑल आर नॉट हार्ड। Metals have high tensile strength. Tensile strength means if you have metallic wire, if you have metal rod, ठीक है, then because metallic atoms are very tightly packed with each other and bonded together, remember, bonded together by very strong force of attraction known as metallic bond, and the metallic bond is very hard between the metals, so they have the very tensile strength. You can not break out the metal rod, metal strip, metal wire easily because they interact by very strong force of attraction. तभी आप देखते हो कि मेटल के एक एंड पे आप अगर आपके पास वायर है, रॉड है, then you can hang very much fast. आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में लिफ्ट लगा होता है, तो लिफ्ट की जो वर्किंग है उसको कनेक्ट करा जाता है एक पुली के थ्रू, एक मेटालिक वायर के थ्रू, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स घर के बाहर आपने देखे होंगे लगे रहते हैं, वैसे ही वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ रोलिंग ऑफ वायर होते हैं उसके थ्रू। और भी कई वेट लिफ्ट मशीन में जो है मेटल रॉड, मेटल वायर्स यूज होते हैं ड्यू टू वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इजिली ब्रेकअप नहीं होते हैं। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मोस्टली मेटल्स, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी, mercury is liquid at room temperature. Cesium and gallium is approx liquid at room temperature, but mercury is totally liquid at room temperature, non-volatile liquid. Except mercury, all metals are solid at room temperature, while gallium and cesium, when you just heat, आपने देखा आइसक्रीम, कभी आप हाथ में रखो सॉलिड आइसक्रीम जो बनी है फ्रीजर से निकाली, उसके बाद हाथ में रखो सॉलिड है, बट आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, देखा है ना। तो आप देखोगे गैलियम और सीजियम कुछ इस टाइप के मेटल्स हैं, सॉलिड हैं, बट जैसे हम हैंड में रख के उसको दबाया, थोड़ी देर रखे रहे, देन इट स्टार्ट मेल्टिंग। लगभग रूम टेम्परेचर पर ही इनका मेल्टिंग पॉइंट है, बट मर्करी हैज बिलो, सो मर्करी इज लिक्विड। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट alkali, alkaline earth metals. These are the sodium, potassium, cesium, gallium, calcium. Not gallium. Gallium is the another type of metal, but it has very low melting point. Metals generally have silver or grey color. ज़्यादातर metals वैसे तो उनका कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता, या अगर कलर शो भी होता है तो वो सिल्वर और ग्रे कलर होते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम कलरलेस होते हैं। Metals generally have silver or grey color. Metals are sonorous. Sonorous means when these are struck, जैसे मेटल अगर ये होता है मैं इसको स्ट्रक करूँ तो वहाँ पे एक बढ़िया साउंड निकलती है, सोनोरस साउंड जनरेट करते हैं व्हेन दे स्ट्रक विद द मेटल। आप देखो मंदिर में जाके घंटा बजाओ, लार्ज ये कि बिल्कुल वेव्स, साउंड वेव्स निकलती हैं, ठीक है, और काफ़ी दूर तक जाती हैं वो, उनको बोलते हैं सोनोरस। सो मेटल्स में बिकॉज मेटल एटम्स आर वेरी क्लोज पैक्ड, वेरी 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 क्लोज्ड, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ठीक है, बट व्हेन वी स्ट्रक सो मेटल एटम्स वाइब्रेट, स्टार्ट वाइब्रेटिंग, and due to the vibrations they strike with the other one and they produce sound waves. So these are sonorous. All these properties are not happen in the non-metals. So these are some general characteristics of metals.
Uses and applications, there are very wide applications, but some of them cooking utensils, कुकर बनाना है, तवा बनाना है, ठीक है, खाने पीने की जो खाना पकाने की जो सामान है वो है, ये चम्मच हो गया, ये चाहे थाली होगी, आजकल तो क्रॉकरी ग्लासेस और सेरेमिक वगैरह की भी आती है, बट मेटल्स की पहले के टाइम पे राजा महाराजा के टाइम पे जो खाने पीने के बर्तन होते, सोने की थाली, चांदी की चम्मच, चांदी का गिलास, सोने का गिलास, ठीक है, वो मेटेलिक होते थे। वैसे ये सारे अब तो नहीं मिलते, बट एलॉइंग करके बना लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फैंस पे में मेटेलिक वायर लगे हुए हैं, मेटल लीव्स लगी हुई है, उसकी आयरन है, स्टील है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। स्विंग मशीन, सिलाई मशीन होगी, तो जनरल एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा तो मैं नट बोल्ट बोल दूँ, ठीक है, चाकू छुरी बोल दूँ, कुछ भी बोल दो जिसमें मेटल हो, ठीक है। रेलवेज लाइन, आयरन, स्टील। ग्राइंडर्स, कार, ट्रक, बसेस, शिप्स, एरोप्लेन के पार्ट्स, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ मेटल्स, ओके। जो हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उसमें चाहे टीएमटी सरिया हो, चाहे टीएमटी बार हो, चाहे खुशियों की शुरुआत घर से हो, चाहे बाहर से हो, ठीक है, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ मेटल्स, चाहे उनकी एलॉइंग की हो, ब्रास, ब्रोंज, दुनिया भर के जितने भी हैं, सिल्वर, गोल्ड, नंबरस, ज्वेलरीज और पता नहीं क्या क्या, ऑल आर मेड अप ऑफ मेटल्स। अंडरस्टैंड? सो दीज आर द सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड दीज आर द एप्लीकेशंस। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पॉइंट्स और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करे जा सकते हैं। What about non-metals? If we talk about non-metals, तो अभी जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, यही प्रॉपर्टीज नॉन-मेटल्स की, बस इनमें सब में नो लगाते जाओ। नॉन-मेटल्स में क्या क्या नहीं होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, नॉन-मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, क्या कहते हैं, नॉट डक्टाइल, not good conductor of electricity and heat, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, ठीक है। not sonorous, generally have low melting point, boiling points, ठीक है। mostly are gases and liquids, बट ऐसा नहीं कि सॉलिड्स नहीं है, कुछ सॉलिड्स भी है, कोई डेफिनेट चीज नहीं है, इसमें फिक्स नहीं है चीजें, ठीक है। नॉट लस्टरस, नॉट बोलिए, जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं, नॉट वेरी हार्ड, सम ऑफ आर जो गैसेस भी है, लिक्विड भी है, तो सॉफ्ट भी होंगे। ऐसे आप तमाम पॉइंट्स बना सकते हो जो जनरली आप पढ़ते हो, समझ गए। हार्ड, स्ट्रॉन्ग, नॉट क्लोजली पैक्ड, can be converted in form of powder, so these are some non-metals. वैसे where mostly non-metals gases और solids होते हैं, the only non-metal which is liquid is bromine. Bromine is the only non-metal which is liquid, ठीक है। non-metals के applications क्या हैं? non-metals में आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हीलियम, आर्गन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है, जिसकी जहाँ जैसी जरूरत है वैसी एप्लीकेशंस बन जाएंगे। वैसे कुछ यूजफुल है, जैसे आयोडीन है, आयोडेक्स में यूज होता है। कार्बन में डायमंड है, डायमंड, ग्रेफाइट, इसके तो सारे इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में एप्लीकेबल है और यूजफुल है। डायमंड ज्वेलरी, डायमंड इन कटिंग, diamond is a very good conductor of heat, ठीक है। so these are some applications and general characteristics of metals and non-metals. These are the physical properties.
Now in the next lecture I will send you the chemical properties based on the chemical reactivity and activity series. तो तब तक आप ये रीड देखिए, वॉच करिए, और मैं एक कुछ पेजेस भेज रहा हूँ, उन पेजेस को आप रीड करिए, इट विल हेल्प आउट. ओके, थैंक यू वेरी